A very good morning, student. This is Srikant, and today we are going to start class ninth Geography, Chapter 4, Climate. It is a very interesting chapter, students. And first of all, we discussed about the basic elements of the natural environment. Okay, what are the basic elements of the natural environment? And the first are the landforms. Okay, and the inland forms we also taught in chapter second the physical features of India. And India have various landforms. Okay, and there is found plain, mountains, plateaus, desert, and the coastal areas. And the second is the drainage. Okay, and the drainage chapters has been deleted by the CBSE. Okay, and the third is the atmospheric. In drainage system we also taught about study about the major river. Okay, major rivers in India. And third is the atmospheric conditions. Okay, we will start our chapter. Okay, with climate and weather. Okay, तो यहाँ पर एक स्टोरी हम लोग स्टूडेंट समझेंगे. एंड द स्टोरी इज एंड वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर. यानी कि दिसंबर के महीने में हम लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं. ओके, एंड वाई द months of May is very hot and uncomfortable. As you can see your NCERT book first paragraph, आप उसको देख सकते हो. Why it is raining during the months of June? During the months of June. Okay. So students, and this and all these questions answer. Okay. We will got after the studying this चैप्टर. यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको सारे आंसर जो है मिल जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में लोग पढ़ेंगे. तो व्हाट इज द क्लाइमेट क्या होता है, एंड व्हाट इज द वेदर. स्टूडेंट्स, and the climate refer to some total weather condition, some of the total weather condition and the variation over a long period of time. Okay, okay, it's and we analyze approx 30 years. इसको मतलब किसी भी एरिया के वेदर्स को हम लोग लगभग क्या करते हैं 30 years तक एनालाइज करते हैं. ओके, एंड जस्ट स्टूडेंट्स we will take example. Okay, and this is the north pole and the south pole. Okay, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, this area is covered with आइस, यहाँ पर बर्फ से ढका होता है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट क्या होगा बेटा, वो बिल्कुल ठंडा होगा. ओके, एंड द सेकेंड केस, किसी भी एरिया की जो बेटा जो पहचान होती है. ओके, ओके, किसी भी एरिया की पहचान जो है क्लाइमेट से होती है. और जो वेदर होता है वहाँ पर बेटा वेदर को उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की वेदर को हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. ओके, तो so we can say that the climate refer to sum of the total weather condition and the variation over a long period of a time more than 30 years. ओके, लगभग जो 30 साल के ऊपर तक हम लोग उसको एनालाइज करते हैं किसी भी एरिया के वेदर कंडीशन को. ओके, एंड दिस इज द क्लाइमेट, एंड द क्लाइमेट इज कांस्टेंट. ओके बेटा, जो क्लाइमेट होता है वो कांस्टेंट होता है. अभी हम लोग वेदर में पढ़ेंगे तो फिर उसको वेरिएशन करेंगे. ओके, व्हाट इज द वेदर? And weather is a day-to-day atmospheric condition, okay, of a particular place over a short period of time. Okay, I repeat it again. The weather referred to as the state of the atmospheric over a area, okay, point of a short period of time. Okay, and weather may be changed after few minutes, after few hours. ओके, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स. यानी कि जो वेदर होता है वो तुरंत मतलब चेंज हो जाता है तुरंत. ओके, जैसे इन अर्ली मॉर्निंग आप उठे, देखिए बिल्कुल मौसम साफ है. ओके, एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ओके, एंड वी रिसीव हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और इवनिंग में क्या हुआ बेटा, थंडर एंड द लाइटिंग, यानी कि गरज चमक रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, व्हाट डिड दिस हैपन हियर, एंड
दिस इज अ चेंजिंग इन अ वेदर, मतलब यानी कि जो वेदर में वो बेटा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो क्या है, एंड वेदर इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, जो वेदर और क्लाइमेट में क्या जो है डिफरेंस होता है, तो इसको आपको क्वेश्चन आएगा और आपको करना होगा। तो क्लाइमेट रेफर टू सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वेदर इज द डे टू डे atmospheric condition, okay, over a short period of time, and the weather does not a constant, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। अभी बिल्कुल जो है ठंडी है, फिर जो है स्नोफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, थंडर हो गया, आ गया, ये सब सारी चीजें, मतलब वो बदलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, एंड देयर इज अ 5 एलिमेंट्स, देयर इज अ मतलब यहाँ पर बेटा जो वेदर और क्लाइमेट की यहाँ पर क्या है बेटा, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, ओके। यानी कि वी कैन से दैट, एंड द 5 एलिमेंट जस्ट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एंड द प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड द प्रेसिपिटेशन, ओके, दैट्स वी कैन मेजर टू द वेदर एंड क्लाइमेट, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, वेदर और क्लाइमेट्स को हम लोग मेजर करते हैं, ओके। और वो कौन है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, मतलब ऑफ एन एरिया मॉइस्चर, यानी वहां पर कितनी नमी है, एंड द प्रेसिपिटेशन, हाउ मच अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल एंड वेरिएशन, ओके, एंड दिस इज द प्रेसिपिटेशन, ओके। एंड तो बेटा जो ये on the basis of generalized monthly atmospheric condition the year is divided, यानी कि on the basis of generalized monthly atmospheric condition, यानी कि जो atmospheric condition है उसके बेसिस पर, and we divided the year is divided into season, जिसे उसको हम लोग सीजन में डिवाइड करते हैं, such as the summer, rainy season and the winter season. Okay student, this is all about weather and climate, and next video we will discuss about the India climates, मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट्स है वो कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।